کتنے لیسن بوائز کمپلیٹ کیے؟ تین۔ 3 لیسن کمپلیٹ کیے، ویری گڈ۔ کس نے بتایا؟ شاہنواز۔ اوکے شاہ نواز، ویری گڈ بیٹا۔ دیکھو شاہ نواز نے تو بتا دیا ہم نے 3 لیسن کمپلیٹ کیے۔ چلیے اب اس کے نام کون بتائیں گے مجھے تینوں لیسن کے؟ میں بتاؤں؟ ہوں شاہنواز۔ ہاں شاہ نواز بولو چلو۔ ایک سچا ہیرا، ایک ہم بھی بڑے بہن، تیجو بیٹی۔ ویری گڈ، بالکل صحیح بتایا شاہ نواز نے کہ ہم نے 3 لیسن جو کمپلیٹ کیے وہ تھے بیٹی پہلا کاویہ ہمارا، پھر سچا ہیرا، نہیں پھر ہم نے کیا ہم بھی بنے مہان، اور اس کے بعد ہم نے کیا سچا ہیرا۔ اوکے، اور تینوں کے سوادھیائے بھی ہم نے کر لیے تھے۔ صحیح کہا نا میں نے؟ ہاں مس۔ اوکے چلیے تو اب ہم آگے بڑھیں۔ یس۔ اوکے تو آج ہم ہمارا چوتھا لیسن شروع کرنے والے ہیں، اور چوتھا لیسن جو ہے اس میں کچھ بات تو ہے ہی، اسٹوری تو بہت اچھی ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اس میں اور بھی سیکھنا ہے، آپ کا فائدہ ہونے والا ہے۔ ایک لیسن سے 2 باتیں آپ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم جو لیسن شروع کرنے والے ہیں وہ ہے، کون پڑھے گا نام؟ میں بولوں؟ تیل والی مصطفی۔ بولو مصطفی۔ ہمیش۔ کیا نام ہے؟ پتروں کے ارے مادھیم پہلے پہلے 8,000 دیش کے نام سندیش، پتروں ہاں کے مادھیم سے ہم دور بسے سمبندھیوں پریوار جنوں تथा متروں کو اپنی بات آسانی سے پہنچا سکتے ہیں، ایوं سرکاری دفتروں میں اپنی شکایتیں اور آویدن پہنچا سکتے ہیں۔ آج کل دور بھاش، موبائل، تار، ای میل آدि سے بھی یہ کاریہ کیا جاتا ہے، پھر بھی پتر کا اپنا وشیش مہتو ہے۔ ہمارے اوکے پورو بس بس اوکے تلوانی، ویری گڈ۔ چلیے تو پتر کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، ہاں کہ پتر کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، پر آج کل نا پتر کا اپیوگ نہیں کے برابر ہو گیا ہے۔ آج کل کوئی کسی کو پتر لکھتا ہی نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں نا لائٹ بل آتے ہوں گے، ایسے بل وغیرہ آتے ہوں گے، پر کسی سگے سمبندھی کا پتر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ آپ اپنے ماما جی کو یا اپنے موسی کو یا دادی کو یا کسی بھی سگے سمبندھی کو چٹھی نہیں لکھتے، یا وہ آپ کو نہیں لکھتے، کیوں نہیں لکھتے؟ چلیے بتائیے مجھے، کیوں نہیں لکھتے ہوئے چٹھی آپ لوگ؟ موبائل ہاں ہاں اس موبائل ویری میں گڈ، ہم بات چیت کر لیتے۔ ہاں ویری گڈ، ہے نا؟ تو آج کل ہم فون کے مادھیم سے ہی بات چیت کر لیتے، ابھی من ہوا بات کرنے کا تو ترنت فون لگا دیا اور حال چال پوچھ لیے، ساری باتیں فون پر ہی ہو جاتی ہے۔ تو میز واٹس ہم ایپ پر ایک منٹ بیٹا، اب بیچ میں مت بولو، ہاں؟ تو ہم شارٹ میں فون میں کوئی بھی کسی بھی طرح سے، چاہے وہ واٹس ایپ ہو یا کسی بھی گروپ میں ہو، کالنگ ہو کسی بھی روپ میں ہو، پر ہم موبائل سے ہی بات چیت کر لیتے ہیں۔ پر پتر جو ہے نا اس کا بھی ایک وشیش مہتو ہے۔ اس سے ہم اپنے سگے سمبندھیوں، پریوار جنوں، متروں سے اپنی بات جو ہے نا وہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سرکاری دفتر جو ہوتے ہیں نا اس میں بھی اپنی شکایتیں، کوئی بھی شکایت ہو آپ کو کہ بھئی آپ کی سوسائٹی کے بارے میں شکایت ہو، یا آپ کے گھر کے بارے میں کہ بھئی ہمارے گھر میں لائٹ کا پرابلم ہو گیا ہے، یا تو پھر
किसी और बात की आपको शिकायत करनी हो, नल के बारे में पानी के बारे में शिकायत करनी हो, या गटर के बारे में कुछ भी शिकायत करनी हो ना आपको, तो आप क्या करते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, यानी शिकायत पत्र जो है वो आप वो सरकारी दफ्तरों में देते हैं। और सच कहे ना तो इस पत्र के माध्यम से बातचीत करने से अपनी जो भावनाएं हैं ना वो अच्छी तरह से व्यक्त होती है, और वो बात हम संभाल के रख सकते हैं। अब मोबाइल में की गई बात तो हम संभाल कर रख नहीं सकते ना, पर अगर पत्र के माध्यम से बात की गई हो, लिखा गया हो, तो आप आसानी से बात कर सकते हैं ना उससे, और कभी भी पढ़ सकते हो। पत्र जो है ना वो आप कभी भी पढ़ सकते हो, जबकि मोबाइल में ऐसा नहीं होता। फ़ोन की सुविधा जो है उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। पत्र के द्वारा जो बातचीत की जाती है वो तो हम संभाल के भी रख सकते हैं। आया समझ में? इसलिए सही कहे ना तो मोबाइल से ज़्यादा तो पत्र जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है, कि उसमें की गई बातें हम संभाल के रख भी सकते हैं। पर आजकल दूरभाष यानी टेलीफोन, वो वायर वाला होता है ना वो, फिर मोबाइल, तार, ईमेल। ईमेल पता है ना क्या होता है? ईमेल पता है आपको क्या होता है? ईमेल, ईमेल कैसे करते हैं? ईमेल कैसे करते हैं बॉयज? मिस नहीं पता। नहीं पता? ओके, चलिए आज का ना आपका होमवर्क है कि आप मुझे परसों जो हमारा लेक्चर है ना उसमें बताओगे कि ईमेल कैसे करते हैं। ओके, ईमेल याद रखना, ये शब्द याद रखोगे ना? ये शब्द आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ईमेल शब्द जो है वो नोटबुक में लिख लो कि हमें ये ढूंढना है, ईमेल। ओके, तो ईमेल आप ढूंढोगे, हम परसों उसके बारे में बात करेंगे। तार, अब तार क्या होता है कि अगर आपको कोई अर्जेंट मैसेज पहुंचाना हो, अर्जेंट बहुत ही ज़रूरी हो, अर्जेंट का मतलब समझते हैं ना, जो बहुत ही ज़रूरी हो उसे अर्जेंट कहते हैं। तो वो मैसेज आप एक या दो लाइन में लिखकर पोस्ट कर दो, तार कर दो। पोस्ट मतलब तार करना, वो एक पोस्ट ही है, वो कागज में ही होता है तार। कागज, ऐसा कागज आता है तार मतलब, तो उसमें लिख के आप तार कर दो, तो वो तुरंत वो मैसेज जो है आपको जहाँ भी पहुँचाना हो पहुँच जाता है। समझे? क्योंकि पत्र आज हम लिखे तो एक दो दिन में पहुँचता है, या दो तीन दिन में पहुँचता है। पर अगर आपको कोई अर्जेंट मैसेज करना हो तो आप तार कर सकते हैं। पर अब तो तार सेवा भी बंद हो गई है, क्योंकि अब तो उसकी ज़रूरत नहीं रही। कोई अर्जेंट हमें मैसेज देना हो, कहीं भी किसी भी शहर में, हमारे सगे संबंधी हो, किसी भी देश में हो, तो हम क्या करते हैं, तुरंत फ़ोन कर देते हैं। इसलिए अब तार की सुविधा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तार सुविधा वैसे अब बंद हो गई है। और इसके अलावा ईमेल, तो ईमेल के बारे में तो आप मुझे जान के लाओगे, ठीक है? तो आदि से ही हमारा कार्य जो है वो हो जाता है। फिर भी पत्र का अपना महत्व है। मैंने कहा ना कि पत्र का महत्व अपना खुद का है, कि उसमें लिखी गई बातें हम संभाल के रख सकते हैं, जब चाहे उसे पढ़ सकते हैं बार बार, है ना? तो वैसा मोबाइल में तो नहीं होता, तो बार बार पढ़ सकते हैं पत्रों को, इसलिए पत्र का अपना ही महत्व है। चलिए, तिलवानी ने तो पढ़ लिया, अब उसके बाद कौन पढ़ने वाला है? नाम बताओ बेटा। मिस मैं पढ़ूं तेलवानी? नहीं तिलवानी, मैंने क्या कहा, आपने पढ़ लिया, अब आप नहीं, अब दूसरे को चांस देंगे। हाँ, चलो कौन पढ़ेगा फटाफट? पंजवाणी। मिस मैं 74। नाम बताओ बेटा। इधर ओके हैदर, पढ़ो चलो। हमारे पूर्व राष्ट्रपिता एवं
मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है? नाम से देश के नागरिक को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। वेरी गुड, परफेक्ट। हैदर, बहुत अच्छे से पढ़ा हाँ आपने। और आप ना मेरी स्क्रीन जूम कर दिया करो, मैंने तो जूम की, पर आप भी अपने फ़ोन में स्क्रीन जूम कर दोगे ना, तो आप और अच्छे से पढ़ पाओगे। देखो, वैसे आप अच्छा पढ़ लेते हो, हाँ, आपको शब्दों में गलती नहीं होती पढ़ने में। जैसे आता है ना तो दिखाई नहीं देता, आधे एक पट्टी आ जाती है। ओके, आपके फ़ोन में ऐसा रहता होगा बेटा, यहाँ ऐसा क्लियर है, यहाँ कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। चलो, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम है ना। और उनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। क्या नाम है उनका पूरा? डॉक्टर, बोलो मेरे साथ, डॉक्टर 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 अबुल अबुल फकीर फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। कलाम। नाम ने कभी कभी हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं, अब म्यूट कर दो। कभी कभी हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताइए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। म्यूट कर दो बॉयज, मैंने कहा म्यूट कर दो अपना माइक। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम है। तो जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो उन्होंने नई दिल्ली में 19 मई 2005 के दिन एक ईमेल लिखा था। अब ईमेल के बारे में तो आप मुझे परसों बताएंगे। तो वो ईमेल जो है, उन्होंने देशवासियों के नाम लिखा था। और उसमें उन्होंने क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, इस टाइटल से देशवासियों को एक संदेश भेजा था। तो वो संदेश जो है वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और इस संदेश के द्वारा देशाभिमान की भावना जो है वो भी हमारी उत्पन्न होती है। चलिए, तो अब देखिए, जब पत्र लिखते हैं ना तो पहले पता होता है। पत्र लिखते हैं ना तो पहले पता होता है। मैं आपको पत्र कैसे लिखना है वो इस बार समझाऊंगी। हमारा एक टॉपिक रहेगा पत्र लेखन, तो मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। पर उससे पहले अभी शॉर्ट में, कि जब पत्र लिखते हैं तो हमारी दाहिनी तरफ जो है वो एड्रेस लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ एड्रेस है ही, मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भांभर, जिला बनासकांठा, और दिनांक, है ना। तो मातृछाया ये मकान का नाम है। अगर आप फ्लैट में रहते हो, एड्रेस कैसे लिखा जाता है ना वो भी आपको समझना होगा। आप लोग एड्रेस लिखते हो ना तो उसमें पूरा एड्रेस प्रॉपर नहीं लिखते, वो वाली गली, उस दुकान के पास में, ऐसे लिखते हो। तो ऐसे नहीं लिखते एड्रेस, ठीक है। पहले तो आप, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आपके फ्लैट का नाम होगा, और अगर आप फ्लैट में नहीं रहते, आपका टेनामेंट है, तो उस पर अगर आपने नाम लिखवाया है तो वो नाम, ठीक है, वो नाम लिखना पड़ता है। यहाँ मातृछाया है। फिर ऊंची शेरी, यहाँ वो शेरी का नाम है। गांव है इसलिए सीधा शेरी का नाम है, पर हमें क्या लिखना है? एरिया का नाम लिखता है। अगर आप यहाँ मान लो अभी हम शिशु विहार में रहते हैं तो हम शिशु विहार लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एरिया का नाम लिखना होता है। फिर गांव का नाम, गांव मेसपुरा, तो हम तो सीधा
भावनगर में ही सिटी में ही रहते हैं तो सीधा भावनगर लिखेंगे, ठीक है। पर परीक्षा में तो आपको यही एड्रेस याद रखना है। ये तो मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपको एड्रेस कैसे लिखना होता है पत्र में। नाम नो आवे मिस। हाँ, आप नाम भी लिख सकते हैं, और अगर आप नाम ना लिखें तो भी चलेगा। पत्र में एड्रेस एक दो प्रकार के होते हैं, एक नाम वाले भी होते हैं, नाम बिना के भी होते हैं, तो आप बिना नाम के भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम ऐसे करेंगे। फिर तारीख लिखनी है, डेट, दिनांक, जिस दिन आपने लिखा वो दिनांक लिखना है, ठीक है। अब आप किसे पत्र लिख रहे हैं वो महत्व का है, तो वो लिखना है आपको। तो प्रिय मित्र हर्ष, तो यहाँ मित्र को पत्र लिखा है, ठीक है। तो हम जिसे पत्र लिखते हैं उसका नाम यहाँ आता है। मिस तो मिस प्रिय मित्र हर्ष, या हर्ष को पत्र लिख रहे हैं इसलिए हर्ष का नाम होगा। बोलो बेटा। मिस ये नाम वाला पत्र हो तो नाम किधर से लिखने का होता है? ऊपर में या सबसे इससे पहले ऊपर, ना, हाँ सबसे पहले। फिर एड्रेस, फिर हम्म, तारीख और फिर हम्म, जिला। फिर एड्रेस पूरा इस प्रकार और फिर डेट, ठीक है। ओके। मिस मातृछाया मतलब कि एड्रेस में। हाँ बेटा, मातृछाया कहाँ ध्यान है आपका? मैंने सारा कुछ बताया कि मातृछाया मकान का, घर का नाम है। ओके, तो प्रिय मित्र हर्ष, ठीक है। तो यहाँ हम हर्ष को पत्र लिख रहे हैं इसलिए उसका नाम पहले आएगा। तो प्रिय मित्र हर्ष, फिर उसके बाद नमस्ते। म्यूट रखो, माइक म्यूट रखो बॉयस। लखवानो से नहीं बेटा, लिखना नहीं है, म्यूट रखो आप माइक। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। देखिए, पहले तो हम पत्र में अपने बारे में बताते हैं और वहाँ का हालचाल भी पूछते हैं। तो इसने क्या कहा कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, यानी कुशल मंगल हूँ, सही हूँ, ठीक हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे यहाँ भी सभी लोग सकुशल होंगे, यानी तुम सभी भी ठीक होंगे। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित कर रहा हूँ यानी तुम्हारे लिए मैं भेज रहा हूँ, लिख रहा हूँ। क्या कहा कि मुझे तुम्हारा खत मिला और पढ़कर खुशी हुई, और मैंने भी डॉक्टर कलाम का एक देशवासियों के नाम भेजा गया जो ईमेल है वो पढ़ा है, वो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। मतलब ये जो लड़का है उसने ईमेल पढ़ा है, इसलिए उसे अच्छा लगा, इसलिए वो दूसरों को, अपने मित्रों को भेज रहा है। जैसे मैं अभी कुछ पढूं तो मुझे अच्छा लगे तो वही का वही मैं आप लोगों को दिखा के, इससे स्लाइड बना के आप लोगों को समझाऊं कि देखो मैंने ये पढ़ा है। तो वो बात समझे आप लोग? समझ में आया? बॉयज, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप आंसर देंगे? बस हाँ, आंसर देना रखो। तो अब्दुल कलाम ने जो लिखा है वो ये लड़का जो है वो अपने मित्र हर्ष को लिखकर भेज रहा है।
ڈاکٹر کلام اپنے संदेश کی शुरुआत में ही पूछते हैं क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है। अब देखिए डॉक्टर कलाम जो है ना उसने जो संदेश लिखा ना उसमें शुरुआत में ही पूछा है कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है। यदि हाँ तो इसे पढ़िए वरना मर्जी आपकी। क्या कहा कि अगर आपके पास समय है तो ही इस संदेश को पढ़िए वरना आपकी मर्जी यानी आप ना पढ़ना चाहे तो कोई बात नहीं पर 10 मिनट का समय तो देश के लिए होना चाहिए ना। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हैं। वो देश के लोगों की सोच कैसी है वह बताते हैं। क्या कहते हैं आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। ऐसा अब्दुल कलाम कहते हैं हमारे बारे में। हाँ कि लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए। क्या आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल पर पहुंचती नहीं है। ये सब बातें जो है ना वो हम सब लोगों के जो विचार है ना वो अब्दुल कलाम जी ने बताए। मैं अगर आपसे ऐसा कहूँ कि आप लोग ऐसा कहते हैं आप लोग ऐसा कहते हैं वैसे तो अब्दुल कलाम जी ने लोगों की सोच बताई कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी। आप देखिएगा कभी कभी आप तो अभी बहुत छोटे हैं पर कभी कभी आपने बड़ों को बातें करते हुए सुना हो ना तो कभी कभी वे लोग राजनीति के बारे में बातें करते हैं आपके पापा और वो सब है ना क्योंकि उन्हें समझ है उसकी। आप में से किसी ने अपना माइक अनम्यूट रखा है। अगर उनका माइक म्यूट नहीं होता तो हम उन्हें यहाँ से रिमूव कर दें। किसका माइक अनम्यूट है बॉयज। मिस फिरोज बदन का माइक अनम्यूट था पर उसने म्यूट कर दिया। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब तक मैं ना कहूँ माइक अनम्यूट ना करो। अगर आपसे माइक म्यूट नहीं रहता ना तो बेटा आपको यहाँ से रिमूव कर देंगे। एक बात एक ही बार बोलनी पड़ती है ठीक है। आप अच्छे बच्चे हो आप समझ सकते हो और हमेशा मानते भी हो। तो क्या कहा अब्दुल कलाम जी ने। मैंने अभी कहा कि आपने अपने बड़ों को बातें करते हुए सुना होगा कि वो लोग बातें करते हैं कि सरकार तो कुछ काम ही नहीं करती। ये सरकार तो ऐसी है ये सरकार अच्छी नहीं वो सरकार ये करती है। तो ऐसे आप लोग सरकार के बारे में बातें करते हुए सुना। फिर कानून के बारे में अदालत कोर्ट है ना उसके बारे में भी सुना होगा कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। फिर नगर पालिका वाले कचरा नहीं उठाते। आपकी शहरी में अगर कचरा रह गया ना तो आप क्या कहते हो ये कचरा उठाने वाले जो है ना ट्रैक्टर वाले वो आते ही नहीं है इसलिए कचरा है। ऐसा हम लोग बोल ऐसा ही हम बोलते रहते हैं। फोन काम नहीं करते समय से। देश में तो भारत देश में तो ऐसा ही है जल्दी से फोन नहीं काम करते। हाँ रेलवे भी कोई ट्रेन भी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती या ज़्यादा अच्छी समय से नहीं चलती हैं। ज़्यादा ट्रेनें नहीं हैं या तो प्लेन की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। ऐसी हम सब शिकायत करते रहते हैं। आप कहते हैं कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया। क्या कहा अब्दुल कलाम जी ने कि आप ये सब बातें कहते हैं और कहते ही रहते हैं पर आपने कुछ किया इस बारे में। ऐसा अब्दुल कलाम जी कहते हैं। सही बात है ना हम ये सब बोलते रहते हैं पर हमने क्या किया इस बारे में। कुछ किया नहीं किया सिर्फ बोला। फिर राष्ट्रपति ने कहा मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। चलिए अब कौन पढ़ेगा इससे आगे यहाँ से। मिस मैं बोलूं पढ़ू पंजवानी। नहीं हाँ पंजवानी चलो पढ़ो। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नहीं यहाँ हवाई। से फिर राष्ट्रपति ने कहा यहाँ से। फिर राष्ट्रपति ने कहा
मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में बस। खाते भी नहीं है। ओके ओके आपके ओके, पंजवानी बस बेटा, वेरी गुड। अगर राष्ट्रपति ने कहा कि चलिए आप थोड़ी देर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है आपका पहचान वाला वो सिंगापुर जा रहा है, और आप ऐसा मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, आप गए नहीं अभी, पर आप ऐसा समझ लीजिए कि वो व्यक्ति नहीं, मैं जा रहा हूँ सिंगापुर, है ना। सिर्फ आपको ऐसा सोचना है, और आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। देखिए हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है सिंगापुर। कौन सा? दुनिया का सिंगापुर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर सिंगापुर ओके, ऐसा प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो सिंगापुर। तो जब आप सिंगापुर पहुंचते हैं ना, तो आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं। अगर हम सिंगापुर जाए ना, तो हम अगर किसी को सिगरेट बीड़ी पीने की आदत हो तो वो कहीं भी सिगरेट का टुकड़ा फेंक नहीं सकता और स्टोर में खा भी नहीं सकता। स्टोर में खाना मतलब जो खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं वहाँ हम खड़े खड़े खा नहीं सकते। होटल हो तो बात अलग है, और बाहर जैसे हम यहाँ बाहर छोटी सी नाश्ते वगैरह की दुकानें होती है ना, तो वहाँ से वहाँ खाने की वैसे इजाज़त नहीं होती, पर हम लोग खा लेते हैं। तो वैसे आप वहाँ खा नहीं सकते, आप ले सकते हैं। हाँ, अगर होटल हो तो वहाँ बैठकर भी खा सकते हैं, पर अगर होटल नहीं है, छोटी मोटी दुकान है, तो वहाँ आप स्टोर में दुकान पर खड़े खड़े खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो यहाँ वहाँ का नियम है, वो सिंगापुर का नियम है कि आप सड़कों पर कहीं भी सिगरेट का टुकड़ा या कचरा नहीं फेंक सकते और दुकान में खड़े खड़े खा भी नहीं सकते। और अगर नियम तोड़ो तो वहाँ आपको दंड मिलता है। दंड मतलब पैसे चुकाने पड़ते हैं। हाँ, ऐसे दंड भरना पड़ता है आपको, और वो नियम सबके लिए वहाँ होता है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ तो आप तुरंत पकड़े जाते हैं 1 सेकंड में, और तुरंत आपको उनके नियमों के अनुसार आपके ऊपर जो भी कार्यवाही होगी वो होगी ही। फिर आप ना नुक्र नहीं कर सकते कि गलती हो गई या मैंने तो सब, कोई करता ही नहीं है वहाँ। इसलिए आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैं अकेला थोड़ी करता हूँ, आप कुछ कह नहीं सकते। आपको नियम है तो नियम मानना पड़ेगा वहाँ, वरना दंड भरना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद है, आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। रश्क यानी ईर्ष्या, रश्क होना यानी ईर्ष्या होना। तो आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। भूमिगत यानी उसके उनके रास्ते जो है ना, उन पर हमें ईर्ष्या होती है। क्यों ईर्ष्या होती है उनके रास्तों पर हमें? बताएगा कोई? क्यों ईर्ष्या होती है हमें उनके रास्तों पर? नहीं कि पता? वो हाँ बोलो। लिए हाँ बेटा, सुनाई नहीं दिया। क्योंकि वहाँ का बहुत अच्छा है। हाँ, वहाँ के रास्ते जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। हाँ, इसीलिए हमें ईर्ष्या होती है कि वाह कितने सुंदर रास्ते हैं, कितने स्वच्छ है, वहाँ कचरा नहीं होता, कोई थूकता नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि उसके लिए तो फिर सजा होती है, इसलिए कोई ऐसे काम करता ही नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसे रास्ते, ऐसे स्वच्छ रास्ते नहीं होते, इसलिए हमें उनके रास्तों पर ईर्ष्या होती है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन
60 रुपये भुगतान करते हैं। वहाँ एक आर्चर रोड नाम का रोड है, जैसे हमारे यहाँ रोड के नाम होते हैं ना, वहाँ वैसे आर्चर नाम का रोड है। उस पर अगर आपको शाम 5 से 8 बजे के बीच गाड़ी चलानी हो ना, तो आपको टोल टैक्स भरना पड़ता है। कितना? 60 रुपये। अब देखिए, हम सोचते हैं कि यहाँ टोल टैक्स भरना हो ना, तो भी हम ना नुकुर करते हैं, विरोध करते हैं। और वहाँ तो कब रोज़ अगर आपको गुजरना पड़े शाम 5 से 8 बजे के बीच, तो भी आपको टोल टैक्स भरना पड़ता है। वो वहाँ का नियम है, तो आपको नियम मानना पड़ता टोल है। हाँ, टोल का मतलब क्या है? टोल टैक्स, ओके, टोल टैक्स मतलब आप रास्ते पर जाते हैं तो उस रास्ते का आपको टैक्स भरना पड़ता है। आपको वहाँ से गुजरना है तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। अब अगर आप कार से आप कार से बाय रोड अगर ट्रेन में, प्लेन में या बस में जाएं तो बात अलग है। पर अगर आपको कार से जाना हो, हाँ, गाड़ी में मुंबई जाओ यहाँ से आप, या उदयपुर जाओ, हाँ, तो आपको बीच में टोल टैक्स मिलते हैं। तो वहाँ आपको रास्ते का जो किराया है कुछ रुपये, या 50, 60 या 100 रुपये जितना होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो वो आपको भरना पड़ता है। उसे टोल टैक्स कहते हैं। आया समझ में? हामी। हाँ, तो यहाँ सिंगापुर में अगर आपको शाम 5 से 8 बजे के बीच गाड़ी चलानी है आर्चर रोड पर, तो आपको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। समझे? फिर अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? क्या कहा कि पार्किंग में अगर आपको गाड़ी रखनी है निर्धारित समय, यानी वहाँ जो तय किया गया समय है उससे ज़्यादा अगर आपको गाड़ी रखनी है, तो आपको वहाँ टिकट लेनी पड़ेगी, यानी पैसे देकर टिकट खरीदनी पड़ेगी। अब यहाँ तो हम देखिए पार्किंग होता है ना, वो भी नो पार्किंग की जगह जहाँ हो ना वहीं गाड़ी पार्क करते हैं, जानबूझ के देखते हैं लिखा हुआ है नो पार्किंग, फिर भी हम गाड़ी रखते हैं। और वहाँ ऐसा नहीं चलता। वहाँ पार्किंग की जगह होती है और उस पार्किंग की जगह का कुछ समय आपको दिया जाता है कि भाई 2 घंटे या 5 घंटे आप गाड़ी रख सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपको गाड़ी रखनी है तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी। अगर 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे में आप आपका काम निपटा कर गाड़ी लेकर चले जाओ तो आपको टिकट नहीं लेनी पड़ती। पर अगर आपको पता है कि मुझे 3-4 घंटे लगेंगे, तो आपको फिर 2 घंटे से ज़्यादा जितने घंटे होंगे उतना जितना तय किराया होगा उतनी टिकट लेनी पड़ेगी। क्लियर? पर आप सिंगापुर में कुछ नहीं कहते हैं। कहते हैं क्या? क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वहाँ तो नियम मानने ही पड़ते हैं। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते और जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। अगर आप दुबई जाओ ना तो दुबई का नियम है कि रमजान का महीना होता है, उसमें आप कुछ सार्वजनिक रूप से यानी बाहर खा पी नहीं सकते। अगर आपने रोज़ा नहीं रखा है तो आप बाहर कहीं जाएं तो बाहर कहीं खा नहीं सकते। और यहाँ हम तो क्या करते हैं क्लास में, हमारे पास वाले ने बेचारे ने रोज़ा किया है और आज हमने कुछ रोज़ा नहीं किया, शायद कुछ प्रॉब्लम है या ठीक नहीं है आपको और आपने नहीं किया, तो आप नाश्ता लेकर आते हैं, पानी लेकर आते हैं। और हमारे पास वाले लड़के का रोज़ा होता है ना, तो हम उसके सामने ही खाते पीते रहते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि उसे कैसा लगता होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। वहाँ इसीलिए नियम है कि बाकी सबने तो रोज़ा किया है ना, तो आप उनके सामने कुछ मत खाओ पियो, आप अपने घर में जाकर खाओ पियो, पर सबके सामने नहीं। ऐसा रमजान महीने में वहाँ नियम होता है। और यहाँ तो हम दूसरों का तो छोड़ो, अपने पास वाले अपने साथ जो पढ़ता है उसका भी नहीं सोचते, है ना? करते हो ना आप ऐसा?
आप ऐसा नहीं सोचते कि चलो मेरे पास वाले का रोज़ा है तो मैं उसके सामने नाश्ता ना करूँ, बाहर जाकर कहीं और जाकर नाश्ता करूँ। हम तो उसके सामने ही करने लगते हैं। उसको कैसा लगता होगा? अगर आपका भी रोज़ा हो और किसी का ना हो और वो आपके सामने करे तो आपको कैसा लगेगा? तो सोचना चाहिए ना बेटा। तो इसलिए दुबई में तो ऐसा नियम है कि रमजान के दिनों में आप बाहर कुछ खा पी नहीं सकते। खाना है, रोज़ा नहीं रखा, खाना है तो अपने घर में खा सकते हो। इतना क्लियर हुआ आपको? इतनी बात क्लियर हुई बॉयज? हाँ। ओके, चलो तो इसके आगे का जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और ख़ास बेटा ध्यान से पाठ समझिएगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं